आशीष सर। पिंटू। हाँ आशीष सर हैं क्या? जी सर। अच्छा। हाँ सर, शुरू किया जाए सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Today's Good webinar morning, sir. topic is today's webinar topic is structural health monitoring using machine learning. To introduce this topic, we are pleased having Mr. Pradeep Kulshesh sir from Lev Hua Technologies Private Limited. Just starting this topic, I would like to invite Satya Prakash sir, who is principal of JP Camur and Buxar, to say a few words over this. Satya Prakash sir. Hello, good morning. Hello, good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I welcome all the participants present in today's webinar, which is jointly organized by Government Polytechnic Camur and Government Polytechnic Buxar. The topic of today's webinar is structural health monitoring using machine learning. We cordially invite Honorable Speaker, Mr. Pradeep Kulshrestha, Live Who Technologies, for the speech. We wish all the success of this webinar. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Pradeep Kulshesh sir. Thank you, Mr. Ashish, and many thanks to Mr. Professor Satya Prakash ji for this warm introduction. And I'll just present my screen so that everyone can see the presentation. I hope you are able to view my screen. Is it my screen is visible? Yes Right? sir, yes sir. Yes, it's visible, sir. Yes sir, visible sir. Yes sir, Okay. visible. All right. Thanks a lot, and a very warm welcome to everyone in this webinar, which is basically hosted by Government Polytechnic Buxar and Government Polytechnic Camur. And a very thanks to them for hosting this webinar. A little bit about us as a firm. I founded Livua Technologies Private Limited in 2018 with the love of structural health monitoring. And I was blessed with very two important people in our business. One is my dad, Mr. Pradeep Kumar, who has 35 years, more than 35 years of experience in structural engineering. Mr. Mohit Dhiman, who has been the key driving factor for our marketing division. And since we all are structural engineers, we understand the behavior of the structure under extreme circumstances, and we understand the abnormal behavior. So that's why, when it came to structural health monitoring, we could appreciate what the data had to present us. And this is why we entered structural health monitoring. So today's overview is first we'll be understanding what machine learning is and what it actually means in the context of structural health monitoring. What benefits or what value it provides when you have data coming from structural health monitoring system. Then we'll understand what are the subdomains of machine learning, what kind of machine learning algorithms are used, and how it can transform our load combinations in our codes. And then we'll cover up a very special study on Srila Prabhupada Samadhi at ISKCON Temple, Vrindavan, where we'll be seeing the live example of how this machine learning enabled us to detect damages in Vrindavan.
So let's first understand why there is a need for machine learning in structural health monitoring. So first is that there are two phases in a design life or a life of a structure, which are very critical in terms of understanding where this structural health monitoring system will be effective. First is during construction. When you have early stage, early strength in your material, particularly in concrete, when you are pouring concrete at site, or maybe it's a cast in situ structure during construction, uh, uh, the structure is very vulnerable. Even during construction, you might encounter earthquakes or extreme wind. It's very important to also prevent catastrophe by installing such systems during construction, so that you could prevent loss of life and irreparable damage. Particularly in bridges, dams, tunnels, this becomes even more essential. For bridges, you can see that it can help us in prediction of the deflection of the piers due to lateral forces, which are generated generally due to earthquake and wind. And this results, the forces which, the demand which the lateral forces exert on these piers result in often a shear failure. As you know, the shear failure is a brittle type of failure. Also, we can understand the growth rate of the enlargement of existing cracks anywhere in the structure. Understanding the context of enlargement from a structural health monitoring point of view, or from the context of the structure, is very important. Where the enlargement is happening, is it local or global? Is it near the junction, or maybe is it where the maximum moments are coming? So you have to identify where the cracks are coming, and then see the progression of it, how fast they are growing in the current circumstance. The structural health monitoring also becomes very useful when you are also transporting these structural members onto your existing piers or systems. So when you're transporting it, there are additional stresses developed on these structural members, which might cause in the failure of these girders specifically, and also the arrangement which is lifting these structural members. These sensors would help us to basically share the data beforehand, and we can predict what might happen in the next few minutes or next few seconds, so that we could prevent unimaginable amount of catastrophe which happens. Recently, we have seen the news that near Sohna in Gurugram, similar things happened where the girders fell down. Fortunately, they were minor injuries, but such instances could lead to many fatalities. So structural health monitoring becomes essential to also important buildings and bridges, like bridges, dams, tunnels, high-rise buildings, where mass casualties can happen at a very fast rate. Fourth point is that after the construction has happened, maybe the occupancy of the structure might change. It might, or maybe there is an incremental load which might come, for which it was not designed for. It generally happens that in a structure, you might load it with additional loads, but originally in the design consideration, it might not be there. So structural health monitoring can allow us to measure the response of those structural elements, so that we could identify whether it's normal or abnormal. And through prediction, we can also identify whether some kind of rehabilitation is to be done or not, and where this rehabilitation is required. So that is why we need structural health monitoring system, because we can save life and know pretty much in advance that, okay, there will be a problem in future, so you have to act now, not when
the yielding of the structural members have happened, and there is irreparable loss. So when the structural members are have yielded, you could not, the amount of money you would be applying to repair them would be much larger than the monitoring cost. So there, the structural health monitoring system is essential. So I would like to also showcase the patent which we as an Indian firm has got. We are proud to be an Indian firm because this technology has been invented by us, and we are very fortunate that we were able to provide value to our clients due to this technology. Basically, this technology also deals in Internet of Things and machine learning. Now, Internet of Things, some people might be confused and the term might be new. So Internet of Things are the network of things or sensors that are connected to Internet. And what happens when they connect to Internet? We also have processors attached to each of the sensors. All of the sensors communicate with each other and intelligently share the data to the cloud. Now, what do we mean by intelligently? The sensors themselves have a processor attached which understand what are the threshold values of each parameter. Now, when the parameters are about to increase in the near future, they communicate with each other. What is happening in other areas? Then send data to the cloud for further processing. So that is what Internet of Things is. It's a network of things or network of sensors which can communicate with cloud or through via internet. Now, once the data is shared by these sensors on the cloud, when we have the data, we can then have analysis done through machine learning algorithms, which provides us with predictive contextual analysis, and that too in real time. So when these sensors are sending data in real time, at that moment, the contextual predictive analysis is also happening. Now, what do we mean by contextual? Contextual means that all of the parameters for that structure are correlated simultaneously with their threshold values, and then told the end user that whether the structure is having a normal response or an abnormal response. And this analysis is provided in real time. Now, many of the conventional structural health monitoring systems only display data. You yourself have to identify what are the patterns, what are the significance of that data in the context of your structure. You need a research scientist to basically interpret those graphs to you. What do they mean? Here, the analysis is done automatically with the help of machine learning, and they help you to correlate with the threshold values in real time and also provide you the prediction. Now, all of this data is gathered via wireless sensors. The capability of wireless sensors allows us to not have the effect of rodents, which are often found at site. Also, the number of sensors which you can connect to cloud at any given time are in thousands, not in some few numbers, which the conventional technology provided. So this is leaps and bounds ahead of what the conventional technology has been there in the world. And we are very proud that as an Indian company, we were able to achieve it in India itself, since it's in made in India technology. Now let's go to what is machine learning all about, and why there is such a big buzz around machine learning in the industry. And you might be here.
हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, कोई कोई वर्ड कहते हैं, आपकी आवाज कभी कभी फंसती है, तो सर क्लियर। मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर, बट मतलब इसी वर्ड को हिंदी में हम हिंदी लैंग्वेज यूज कीजिए। अच्छा, हिंदी हिंदी में सुनिए। यस सर। So presentation is not visible. Your face is visible, sir. हाँ सर। Is my screen Abdul visible? Rahim, Abdul मेरी Rahim, Abdul Rahim, please stop presenting. sir. Abdul Rahim. हाँ सर। Abdul Rahim. Stop your presentation. Stop your presentation, Abdul. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. मेरी ये स्लाइड आपको दिखी थी? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिख रही है सर। हाँ जी। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हम एज एन इंडियन कंपनी हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें हम रियल टाइम प्रिडिक्टिव कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल का मतलब है कि हम हर एक पैरामीटर को उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ हम नाप सकते हैं इन रियल टाइम, और फिर प्रिडिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगले कुछ समय में स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये सब जो डेटा है हमारे पास जो आ रहा है वो वायरलेस सेंसर्स के थ्रू आ रहा है। और वायरलेस सेंसर्स से हमें फायदा क्या है कि साइट पे जैसे रोडेंट्स होते हैं, जैसे चूहे होते हैं या जीव जंतु होते हैं फॉरेस्ट में, तो उनसे हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता था। तो उन ऑप्टिकल फाइबर के यूज करने से वो ऑप्टिकल फाइबर कटने का बड़ा डर रहता था। इसके थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिमोट एरियाज में भी जहां आपके इंटरनेट के सिग्नल्स जो है वो ज़्यादा नहीं आते, वहां पे भी हम ये टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं और आपको रियल टाइम एनालिसिस दे सकते हैं। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में जो डेटा दिखाया जाता था उससे एनालिसिस नहीं आता था, वो खाली डेटा दिखा देते थे और उस डेटा को पढ़ने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हायर करना पड़ता था जो उस डेटा या ग्राफ्स को पढ़ के आपको ये बताए कि इस डेटा का मतलब क्या है। अब समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक बड़ा फील्ड बन गया है इंडिया में, और इससे रिलेटेड काफ़ी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन ये समझते हैं कि मशीन लर्निंग स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है इसका और मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि कंप्यूटर्स को एबिलिटी देती है जिससे कि वो बिना फॉर्मूला यूज करे ये बता दे कि करेक्ट आंसर क्या है। अब वो कैसे बता दे, वो एग्जाम्पल्स आप उनको प्रोवाइड करें, कंप्यूटर को प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप स्टार्ट्स लगाएं। स्टार्ट्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आती है, मीन मीडियन मोड जो आप ड्रॉ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। तो आप उस प्रोबेबिलिटी के एस्पेक्ट में करेक्ट आंसर
फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है मशीन लर्निंग में कोई भी चीज। आप जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, जैसे यूडीएल है सिंपली सपोर्टेड का WL²/8, तो WL²/8 एक फॉर्मूला है जिससे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। लेकिन डेटा साइंस में कैसे देखते हैं इसको, कि आपके पास कई सारे यूडीएल्स के इनपुट वैल्यूज है, आपके पास W भी है, L भी है, और बेंडिंग मोमेंट का आउटपुट भी है। तो जब आपके पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें बेंडिंग मोमेंट निकाला हुआ है हर एक W और L के लिए, तो डेटा साइंस एल्गोरिदम क्या करता है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेता है और प्रोबेबिलिटी निकालता है कि अगर कोई नया W और L आता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस बेंडिंग मोमेंट के सही होने की। तो सारी चीजें प्रोबेबिलिस्टिक टर्म में है, एब्सोल्यूट टर्म में कुछ भी नहीं है। ये इसकी ब्यूटी है कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा में भी फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से सही आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। तो सारी चीजें आप प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखते हैं मशीन लर्निंग लैंग्वेज। अब जानते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है। ये एक मशीन लर्निंग का सब डोमेन है जिसमें आपके पास सही आंसर ऑलरेडी पता है, आपको एक बेसलाइन वैल्यू ऑलरेडी पता है जिससे आप फर्दर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे कई केसेस हैं जहां सही आंसर आपको पहले से ना पता हो, आपको ना पता हो कि सही बिहेवियर एक स्ट्रक्चर का क्या है। उस केस में ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं चलेंगी, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं चलेगी। उस केस में अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलेगी। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में आपको बेसलाइन वैल्यू पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो बेसलाइन वैल्यू सही है। तो उसकी मदद से आप जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपने डेटा में से। अब वो जैसे आपके पास डेटा सेट में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है, कॉन्टिन्यूस का मतलब न्यूमेरिकल, तो उन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे आप रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से आप फ्यूचर न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन किन की मदद से आ सकता है, लोड की मदद से भी आ सकता है, टेम्परेचर की मदद से भी आ सकता है। अब ये दो आपके पास पैरामीटर्स हैं कि एक लोड की वजह से स्ट्रेन आ गया, एक आपके पास टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेन आ गया। तो आपको अब प्रेडिक्ट करना है कि स्ट्रेन की दोनों की वजह से वैल्यूज थ्रेशोल्ड को पार करेंगी कि नहीं करेंगी फ्यूचर में। तो आप रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से आप स्ट्रेन की फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लोड एंड टेम्परेचर। ऐसे ही डिफ्लेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही एक्सेलरेशन, ऐसे ही क्रैक विड्थ, ऐसे ही प्रेशर, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। अब आपके पास और भी टाइप के डेटा हो सकता है जिसमें पास, फेल, गुड, बैड, हाई, मीडियम, लो तरीके का डेटा भी हो सकता है आपके पास। तो उन केसेस में आप क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, जहां आपको बेसलाइन पता हो कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका सही बिहेवियर ये है, फिर आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा सकते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं वो यहाँ लाई करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में, जहां पे आपको सही आंसर नहीं पता है कि सही रिस्पॉन्स क्या है आपके स्ट्रक्चर का, क्योंकि आपका बेसलाइन या तो शुरुआत से एस्टैब्लिश हो, जब कंस्ट्रक्शन हो गया हो तब आपके सेंसर्स वहां पे लगे हो और तब से आपकी रीडिंग्स आनी चालू हो जाए। जनरली जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जब चीजें रिफ्लेक्शन आ जाता है, जब चीजें हो जाती हैं, तब स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग की जाती है, जब कुछ डिस्ट्रेस आइडेंटिफाई होता है। तो उस केस में सही बिहेवियर की बेसलाइन वैल्यू आपको नहीं पता होती,
तो उस केस में ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम में आती है, जब आपको ये नहीं पता कि आपकी बेसलाइन सही है कि नहीं सही है। तो उन केसेस को हम कैसे डील करते हैं? वो ऐसे डील करते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जैसे क्लस्टरिंग, जैसे एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में क्या है कि आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, उन डेटा पॉइंट्स में आप एक अजम्पशन के तौर पे क्लस्टर्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं विद इन डेटा पॉइंट। फिर उन डेटा पॉइंट्स में सेंट्रॉइड आप ढूंढ लेते हैं, फिर उस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आप डेटा पॉइंट से मेजर करते हैं कि वो कितना ज्यादा है। उस डिस्टेंस को आप मिनिमाइज करते रहते हैं जब तक आपके हर एक ग्रुप के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इंडिविजुअल डेटा पॉइंट से सबसे मिनिमम ना आ जाए। तो वो आइटरेशन चलती है और उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। तो जब नया डेटा पॉइंट आता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो किस क्लस्टर को बिलोंग करता है। सेकेंड है एसोसिएशन। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल था जिसमें आपके पास सर्टेन स्ट्रेन, सर्टेन डिफ्लेक्शन, सर्टेन प्रेशर वैल्यूज के लिए आपके पास एक एबनॉर्मल बिहेवियर आया, वो एक केस स्टडी हो गई आपके पास। अब एसोसिएटिव एल्गोरिथम क्या करती है कि जब नया स्ट्रेन आएगा, जब नया रिफ्लेक्शन या प्रेशर आएगा, तो वो ये ट्राई प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है क्या ये वही सिचुएशन है जो पहले थी या ये नई सिचुएशन है। तो वो एसोसिएट करने की कोशिश करती है, तो उससे रिलेटेड वो रिकमेंडेशन भी देती है। तो ये दो तरीके की चीजें मैंने आपको बताई, ऑल्दो बहुत सारी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक सेंस है कि होता क्या है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या क्या डोमेन क्या है, इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब जाते हैं हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में रिग्रेशन की तरफ। अब इस रिग्रेशन में आपने पढ़ा होगा लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। अब क्या है कि आपके पास कई सारे डेटा पॉइंट्स आ गए जिसमें आपने ये देखा कि भाई हमारी स्ट्रेन की वैल्यू, हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यूज, हमारी प्रेशर की वैल्यूज, हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यूज कुछ थी। अब आप एक उन डेटा पॉइंट्स पे लाइन अज्यूम करके देखते हैं कि क्या मैं इन डेटा पॉइंट्स को इस लाइन से बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जैसे आप ये लाइन एक स्ट्रेट देख रहे हैं, ऐसे ही मैं कई लाइन बनाता हूं। मैं हॉरिजॉन्टल भी बनाता हूं, मैं वर्टिकल भी बनाता हूं। फिर मैं देखता हूं कि मेरे जो प्रिडिक्टेड लाइन है उससे मेरे डेटा पॉइंट्स की दूरी कितनी है, क्या वो ज्यादा है या क्या वो कम है। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं एरर, कि मेरा प्रेडिक्शन मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट से कितना दूर है। और इस एरर को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं? वो मिनिमाइज करते हैं हम स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज करते हैं। b1 क्या है? m क्या है? स्लोप। b0 क्या है? y इंटरसेप्ट। तो इन डेटा साइंस की लैंग्वेज में ये b1 और b0 को हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। अब ये हाइपर पैरामीटर्स को हम जब चेंज कर करके देखते हैं जिससे कि हमारा एरर कम हो जाए, तो उसको कहते हैं हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हम इन पैरामीटर्स को ट्यून करके देखते हैं कि हमारा जो लाइन है वो सबसे लीस्ट एरर कब दिखा रहा है। तो हम एरर को एक कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा एरर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी उस सही रिजल्ट को तक पहुंचने के लिए। तो हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए। अच्छा, इसमें x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप x जो है वो कहलाता है फीचर। फीचर जैसे
आपका स्ट्रेन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया। y जो है वो है आउटपुट, क्या मेरा स्ट्रक्चर सेफ है या अनसेफ। तो हम हमारे डेटा सेट में कई सारे फीचर्स हो सकते हैं और उससे फिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो लाइन है उसका मिनिमम एरर कितना है, कौन सी ऐसी लाइन है जिससे मिनिमम एरर आता है, जिससे कि हम ये बता सकें एक्यूरेटली कि स्ट्रक्चर का सही रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो एबनॉर्मल है क्या वो या नॉर्मल है। तो ये जो पूरी एनालिसिस होती है उसे कहलाते हैं रिग्रेशन, और ये कंटिन्यूस वेरिएबल पे करी जाती है जहां न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हो, कैटेगोरिकल नहीं। जैसे मैंने पहले समझाया कि कैटेगोरिकल जैसे गुड, बैड, हाई, मीडियम, लो, ऐसी जो डेटा पॉइंट्स हैं या ऐसे जो आपके डेटा में वैल्यूज हैं उनमें रिग्रेशन नहीं किया जाता। अब आते हैं क्लस्टरिंग पे। ये एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जैसे मैंने पहले समझाया, जिसमें आपके पास डेटा पॉइंट से एक ग्रुप बना दिए जाते हैं विद इन द डेटा पॉइंट्स और उनका सेंट्रॉइड ले लिया जाता है और उस सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है इन डेटा पॉइंट से वो मिनिमाइज किया जाता है थ्रू वेरियस आइट्रेशंस। जब वो मिनिमाइज डिस्टेंस आ जाए हर एक सेंट्रॉइड का डेटा पॉइंट्स पे से, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि जब नया डेटा पॉइंट आएगा वो किस क्लस्टर को बिलोंग करेगा। ये तो हो गई बात क्लस्टरिंग की, जिससे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं अनोमली डिटेक्शन में, जो कि हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अनोमली जिसे कहते हैं कि हमारी डेटा सेट में कोई गड़बड़ी है या कोई ऐसा पॉइंट है जो उस डेटा सेट को बिलोंग नहीं करता, या कोई डैमेज ऐसा हुआ जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग है, कोई ऐसा पॉइंट जो बताए कि भाई कुछ गड़बड़ी है आपके स्ट्रक्चर में, तो वो डैमेज डिटेक्शन के काम आता है एनोमली डिटेक्शन। यहां पर दो तरीके की एल्गोरिथम्स में डिस्कस करना चाहूंगा, एक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और दूसरी है सपोर्ट वेक्टर मशीन। पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन देखते हैं, फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सपोर्ट वेक्टर मशीन में इमेजिन कीजिए कि आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस में मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। अब एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर को आप मॉलिक्यूल्स के थ्रू कट कीजिए, तो जो पेपर है आपका उसको कहते हैं हाइपरप्लेन। इस पेपर से हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि नॉर्मल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और अबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। अब जैसे जैसे हमारे फीचर बढ़ते जाते हैं डेटा सेट में, वैसे वैसे डायमेंशन चेंज होती जाती है। अभी आप 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं, जब हम हाइपर प्लेन बनाते हैं तो nth डायमेंशनल स्पेस में चीजें जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि 3 डायमेंशंस में ही रहे। तो हाइपर प्लेन भी वैसे ही बनता जाता है, जिसमें हम अपने डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई कर पाए कि नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, अपने डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो ये हो गया सपोर्ट वेक्टर मशीन। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हर एक डेटा पॉइंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शनैलिटी होती है। जैसे आपका स्ट्रेन है, उसकी कुछ डायरेक्शनैलिटी है XYZ, आपके एक्सेलरेशन की कोई डायमेंशनैलिटी है XYZ। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम ये डायरेक्शनैलिटी हटा देते हैं और 2 डायमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं, जहां पे हमें ये बताए कि सही क्या है, गलत क्या है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और हम प्लेन की डायमेंशनैलिटी रिड्यूस कर देते हैं। सिर्फ गुड, बैड, यस, नो में हम
ये चीजें देख सकते हैं। राइट लेफ्ट में, जैसे राइट में आपके डेटा पॉइंट चले गए, लेफ्ट में चले गए, टॉप में चले गए, डाउन में चले गए। इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में हम डेटा पॉइंट्स को रिड्यूस कर देते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। इसमें जो नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है वो राइट में हो सकता है, अबनॉर्मल लेफ्ट में हो सकता है। तो इतनी सिंपल तरीके से हम अपने अनोमली को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपके कितने भी वेरिएबल्स हों अपने डेटा सेट में, वेरिएबल्स एज इन पैरामीटर्स जो आप मेजर कर रहे हैं, उनको आप नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर के टर्म्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो इससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि मेरा अनोमली क्या है डेटा सेट में। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग हमें अपने लोड कॉम्बिनेशन जो हैं हमारे IS 875 में और IS 1893, IS 456 और IS 16700 जो हाई राइज कोड है हमारा, उसमें हमारी ये मशीन लर्निंग कैसे हमें बेनिफिट कर सकती है। तो आप 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख रहे हैं, एक है लोड का, एक है रेजिस्टेंस का। यूएस में क्या किया गया कि एक फिलॉसफी बनाई गई, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन। तो उन्होंने हजारों स्ट्रक्चर्स मॉनिटर किए स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग से, और ये पाया कि जनरली आपका जो स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है वो लोड के कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि आप कंजर्वेटिवली डिजाइन कर रहे हो अपना स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपका जो स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है लोड के कंपैरिजन में, वो लोड एक्सीड हो रहा है रेजिस्टेंस से और फेलियर हो रहे हैं कुछ रीजन में। तो वो जो इंटरसेक्शन है रेजिस्टेंस और लोड का, उसको हम लोड कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ला रहे हैं कि भाई हमारा लोड कॉम्बिनेशन का फैक्टर जो है वो कितना होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि जिन एरियाज में हमारे लोड कॉम्बिनेशन ओवरली कंजर्वेटिव है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आ जाए। और कुछ एरियाज में जहां फैक्टर बढ़ाने की जरूरत है वहां हम बढ़ा भी सकते हैं। तो वो एक बड़ी स्टैटिस्टिकल अप्रोच हम मशीन लर्निंग के द्वारा अचीव कर सकते हैं। एंड जो फिलॉसफी यूएस में ली गई वो है लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन। तो मैं इनकरेज करूंगा आपको कि आप लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन के बारे में पढ़ें। अब एक केस स्टडी जो देखते हैं कि जहां मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया, ये इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में हमने मॉनिटरिंग की, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग की। और इनिशियल रिपोर्ट प्रोफेसर दिवाकर जी ने दिए हमें, उनकी गाइडेंस पे बेस्ड हमने ये मॉनिटरिंग की, और IIT दिल्ली ने हमें रिकमेंड किया कि हमें कैसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हैं पिक्चर में कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एक ओवरहैंग है। ये जो ओवरहैंग है इससे हमारे जंक्शन पे नेगेटिव मोमेंट क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, और जिसके कारण हमने भी एक्चुअली ये सोचा कि इस टेंशन के कारण और डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण शायद ही क्रैक्स आ रहे हैं फ्लोर पे भी और बीम्स पे भी। बट IIT दिल्ली ने हमें कहा कि आप स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के थ्रू वैलिडेट कीजिए कि या ये जो आप थ्योरी है वो सही है कि नहीं है, या और क्या रूट कॉजेज हैं जिससे कि ये क्रैक्स आ सकते हैं।
तो पहले हमने स्ट्रेन गेज बीम पे लगाया जहां पे एक क्रैक हमें दिखा। स्ट्रेन गेज देख सकते हैं, हमने क्रैक के अक्रॉस लगाया है और एक आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल है। ये स्क्रीन विजिबल थी आपको? Yes, sir. ये इस टाइम पे स्क्रीन विजिबल थी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था? Yes, sir, it is visible. अच्छा, was this visible, this slide? Yes, it sir. is visible. Answer. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Actually, I want to know from where did you not see the slides? कौन सी स्लाइड आपको दिखी नहीं थी, वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सर, रेगुलर दिख रहा है। ये आपको दिखी थी ये वाली स्लाइड? हाँ सर। ये वाली दिखी थी? जी सर। ओके, दिस वन? सब रेगुलर दिख रही है सर। अच्छा, रेगुलर दिख रही है सर। वो एक स्टूडेंट को नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से में भी हो सकता है ना दिखाई दे रही हो, ऐसे विजिबल है सर। अच्छा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक बीम पे हमने स्ट्रेन गेज लगाया और एक फ्लोर पे हमने क्रैक मीटर लगाया। इन दोनों सेंसर्स पे टेम्परेचर जो है सेंसर वो इनबिल्ट है इन सेंसर्स में ही। हमने ये जो मॉनिटरिंग की वो जो पीरियड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो है जनवरी 12 टू फरवरी 7 इस साल। तो ये पीरियड ऑफ मॉनिटरिंग हमारा था जो अभी हम दिखा रहे हैं। और भी है पीरियड ऑफ मॉनिटरिंग, लेकिन इंटरेस्ट हमारा इसी टाइम फ्रेम का है। तो क्रैक मीटर हमने फ्लोर पे लगाया क्योंकि हम फ्लोर पे क्रैक्स देख रहे थे। तो हमने ये पाया कि हमारा जो स्ट्रेन जो हमारा बीम पे लगा हुआ था स्ट्रेन गेज, उसमें कोई अप्रिशिएबल डिग्रेडेशन नहीं दिखाई दी, हमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं दिखाई दी। हम इसको फोरकास्ट करा हमने मार्च 14 तक, फरवरी 7 तक हमारे पास डेटा था, मार्च 14 तक हमने फोरकास्ट किया तो हमें कुछ अप्रिशिएबल डिफरेंस दिखाई नहीं दिया बीम में। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर साइकिल्स की वजह से, डे एंड नाइट की वजह से हमारा स्ट्रेन कैसे वेरी हो रहा है। दिन के टाइम में जैसे स्ट्रेन हमारा ज्यादा हो रहा है, नाइट के टाइम पे हमारा स्ट्रेन कम हो रहा है, लेकिन लोडिंग या किसी और सर्कमस्टांस की वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मशीन लर्निंग की मदद से मैंने जब नॉर्मली की बात की थी तो वो यही नॉर्मली डिटेक्शन है जिसकी हमने बात की थी। इसमें हमने 5 फरवरी को एक अनॉमली आइडेंटिफाई की मशीन लर्निंग की मदद से, जिसमें ये पाया कि क्रैक जो था वो 23% से बढ़ गया 4 और 5 बजे के बीच में। 5 फरवरी को 23% से ये अनॉमली हमने रियल टाइम में हमें मिली। तो जब हमें ये अलर्ट मिला तो हमने देखना शुरू किया कि इन टाइम्स पे हमारा क्रैक की पोजीशंस क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 29 को हमारा क्रैक 0.1 था और फरवरी 5 को 0.24 हो गया। तो क्रैक बढ़ता रहा और इस क्रैक के बढ़ने की वजह हमने इस्कॉन टेम्पल से कंसल्ट किया कि इस टाइम पे होता क्या है वृंदावन के टेम्पल में। तो उन्होंने बताया कि इस टाइम पे कीर्तन होता है जिसमें जो डिवोटीज हैं वो सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट में स्टेप लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एक स्टेप आगे लेते हैं, वो
बना हुआ है फ्लोर पे, और जो सिंक्रोनाइज मूवमेंट है उससे कुछ वाइब्रेशन हेलो पिंटू। हेलो पिंटू। आशीष, आवाज जा रही है क्या? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। अदित सर लगता है नेटवर्क में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा। हेलो दिवाकर सर। दिवाकर सर, आवाज आ रही है दिवाकर सर? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रहा है। जरा स्पीकर है प्रदीप सर, तुमको देखो ना, बात करो अगर होता है तो, फोन है तो। हेलो पिंटू। हाँ, आ गया आ गया। हेलो सर, सर वो जो है कुछ इंटरनेट इशू है सर का, तो सर ठीक करके फिर ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो सभी लोग वेट करते हैं। सभी लोग वेट करते हैं फिर।
हाँ सर, वेट किया हाँ। जाए, वेट किया जाए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। प्रदीप सर आवाज आ रही है क्या? प्रदीप सर, हाँ सर, आवाज मिल रहा है सर। नॉर्मल प्रदीप सर का माइक म्यूट है। क्या सर? नॉर्मल फोन से काम बात करिए, व्हाट्सएप का मैसेज दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। इंटरनेट इशू है सर, सही बात हुई है। वो कर रहे हैं, थोड़ी देर में कनेक्ट होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एडवाइस किया जा रहा है कि वेबिनार लीव नहीं करेंगे। टेक्निकल इशू के कारण जो है प्रदीप सर जो है कनेक्टिविटी से आउट हो गए हैं। थोड़ी देर में वो फिर से लॉग इन करेंगे। सारे लोग वेबिनार में बने रहें। सॉरी, ये थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं यस। हाँ जी, तो जैसे मैं मेरी स्क्रीन देख पा रही है? हाँ सर, देख रही हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमने अनोमली डिटेक्शन का जिक्र किया। उसमें मशीन लर्निंग जो लैंग्वेज है, उसका हमने एल्गोरिदम्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ये देखा कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है क्रैक्स की फ्लोर पे। और हमें 5 फरवरी को ये पता लगा कि सडनली हमारा क्रैक बढ़ गया। जनवरी 29 को 0.1 था, फरवरी 5 को 0.24 हो गया, तो हमारा क्रैक बढ़ गया था। और जब हमने और सर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें पता लगा कि उन टाइम्स पे कीर्तन होता है इस्कॉन टेम्पल में, और जब भी कीर्तन होता है तो हरे कृष्णा के चैंट के साथ लोग सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट में स्टेप्स लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। उसके कारण फ्लोर वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, और जो फ्लोर वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्रैक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, मार्बल की जो में क्रैक जो था। और रेजोनेंस के कारण ये क्रैक्स मार्बल में बढ़ते रहे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये पता लगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हमारा जो स्लैब है वो अभी भी ठीक है। बट इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये पता लगा पाए कि उन क्रैश का रूट कॉज क्या था, और उससे हम टाइमली प्रिकॉशन ले पाए। अच्छा, ये समझते हैं कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी काम क्यों नहीं करती उन केसेस में, क्योंकि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो है खाली डेटा रिपोर्टिंग करती, वो ग्रोथ रेट नहीं बताती प्रॉब्लम्स का। और जो क्रैक हमारे बढ़े वो उसमें स्पेसिफिक टाइम्स पे जो क्रैक बढ़े वो मैक्रो लेवल पे ह्यूमन आई द्वारा आप पता नहीं लगा सकते। वो एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करके बाद ही पता लग पाता। लेकिन यहाँ हम इंस्टेंटली हमने बता दिया कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है हमारे डेटा में, तो हमें चेक करने की जरूरत है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी नहीं बता पाता।
क्योंकि वो एनालिसिस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डेटा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक मेजर फर्क है। ये एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था आईआईटी दिल्ली में, जहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी कितनी है व्हेन वी कंपेयर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को हमने ये माना कि वो सही रिजल्ट दे रहे हैं, और हमारे से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कितने कंपैरेबल हैं कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के कंपैरेटिवली। तो आईआईटी दिल्ली ने कंक्लूड किया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सही हैं और कंपैरेबल हैं कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में। फर्दर मोर, हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा आप प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करता। तो ये एक बेनिफिट है जहां आप एनालिसिस भी आपको साथ साथ मिल रही है डेटा रिपोर्टिंग के अलावा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं उस स्टडी के। जब वो लोड बढ़ाया गया तो हमारा स्ट्रेन भी बढ़ा, और जैसे लोड पोस्ट यील्ड वो लोड डिक्रीज होता गया। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड आई एम रियली ग्लैड कि Pradip, there is a question in your chat box. Let me question in your chat box. Amit Kumar has asked the question. Yes. अच्छा, व्हाट इज कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी किसी ने पूछा है। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में सेंसर्स हैं, डेटा लॉगर है। ये डेटा लॉगर एक सिमिलर चीज है आपकी सीसीटीवी जैसे आपके कैमरेज हैं आपके घर पे। सीसीटीवी में एक डीवीआर होता है जो कि एक वायर से कनेक्टेड होता है। सीसीटीवी के डीवीआर में चैनल्स होते हैं। यहाँ हमारी ये एक वैसे ही सिमिलर प्लेटफॉर्म कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का है, जहाँ पे सेंसर एक डेटा लॉगर से कनेक्टेड है थ्रू वायर, और डेटा लॉगर की लिमिट है कि कितने सेंसर्स कनेक्ट हो सकते हैं उस डेटा लॉगर से। और डेटा लॉगर में फिर आप सिम लगा के आप सर्वर के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन उससे एनालिसिस नहीं प्रोवाइड हो रही, उससे डेटा रिपोर्टिंग हो रही है लेकिन एनालिसिस नहीं प्रोवाइड हो रही। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी वायर्ड है, आप ऑप्टिकल फाइबर्स साइट तक आपको ले जाने पड़ेंगे, डेटा लॉगर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वायरलेस नहीं है ये सोल्यूशन, वायर्ड है, डेटा रिपोर्टिंग होती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ सेंसर्स आपको कनेक्ट करने हैं आपके डेटा एक्विजिशन सिस्टम में जो डेटा लॉगर है, तो उसमें आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। वो है कन्वेंशनल सिस्टम जहाँ पे एक वायर्ड सेटअप है और वो एक तरीके की डीवीआर से अटैच्ड है, और उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स ऑफ सेंसर्स ही कनेक्ट हो सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स नहीं कनेक्ट हो सकते एट एनी गिवन टाइम। आई होप कि मैंने सवाल का जवाब दे दिया आपका। और कोई सवाल है? यस मैम। सर ये जो टेक्नोलॉजी है मतलब कितना ज़्यादा कॉस्टलियर है, या फिर एट दिस प्रेजेंट टाइम इंडिया में मतलब लागू कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? कितना ज़्यादा किस एरिया में कितना ज़्यादा कॉस्टलियर है? जो आपकी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, हाँ मैं आपको आंसर करता हूँ। जो आपकी कन्वेंशनल जो आप स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 5 से 10% कॉस्ट करता है कन्वेंशनल। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो करीबन 1 से 2% सस्ती है अगर आप ज्यादा सेंसर्स पे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 7 से 8%। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो मैंडेटरी हो गई है रेल ओवर ब्रिजेस में, और हाई राइज बिल्डिंग्स में प्रिस्क्राइब की गई है। 16700 कोड है हमारा, हाई राइज बिल्डिंग का कोड है IS 16700। उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग को फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स।
तो ये ऑलरेडी पिछले 30 साल से ये टेक्नोलॉजीज अप्लाई की गई हैं, बट मशीन लर्निंग और आईओटी की मदद से नहीं की गई, सिर्फ डेटा रिपोर्टिंग की गई है पिछले 30 साल। यहाँ इस हमारी टेक्नोलॉजी या मशीन लर्निंग की मदद से हम एनालिसिस रियल टाइम में प्रोवाइड कर पा रहे हैं, खाली डेटा रिपोर्ट नहीं कर रहे, और ये भी बता रहे हैं कि उस डेटा से आपके स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सिक्वेंस है फ्यूचर में। और कोई सवाल है? सर इसका जो है इस टेक्नोलॉजी का सिविल स्टूडेंट और स्टूडेंट विद अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड? जी फिर से एक बार बताइए, सवाल क्या है? सर मीन्स इस टेक्नोलॉजी को सिविल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पढ़ना है या फिर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड? दोनों के सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि आप समझते हैं आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा डेटा साइंस पढ़ने में भी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, मैंने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की है। मैंने फिर अपने आप से ही डेटा साइंस पढ़ा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा, फिर ये टेक्नोलॉजी बनाई। तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको खुद को ही डेटा साइंस पढ़ना है और आईओटी के बारे में जानना है, तब आप इसका बेटर अप्लाई कर पाएंगे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। Sir, what are the difference between machine learning and non-destructive testing? Yes, good question. Structural health monitoring is a non-destructive testing. Non-destructive testing meaning that you do not destruct the structure and then evaluates its performance and response in external environments or excitations. Here also we are not doing any destructive testing. We are doing non-destructive testing only. But in the NDT which you have currently in the practice doesn't give you time series data. टाइम के साथ डेटा नहीं बताते हैं, वो एक बार ही टेस्ट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है या उसकी क्वालिटी क्या है। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, इन स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग वी आर measuring what is the response of the structure with varying excitations in the period of its life, and then we are applying machine learning to predict. NDT में प्रिडिक्शन नहीं होता, NDT में सिर्फ रिजल्ट बता दिया जाता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी होमोजेनिटी क्या है कंक्रीट की या जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर ले रहे हैं। बट इन एसेंस स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग is also non-destructive testing, but a much more advanced version of non-destructive testing. Okay, sir. Any other questions? सर इस टेक्नोलॉजी का प्रेडिक्शन टाइम पीरियड क्या है? दिस मीन्स अगर किसी ब्रिज के ईयर्स में या गदर्स में अगर क्रैक्स वगैरह डेवलप होने वाली है तो हमें कितने दिनों तक पहले या कितने महीनों पहले अनुमान लग जाएगा कि जस्ट अबाउट टू हैपन? गुड क्वेश्चन। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये सब डिपेंडेंट है कि कितना डेटा आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, कितनी मॉनिटरिंग हो चुकी है। मान लीजिए कि 3 महीने की मॉनिटरिंग हो चुकी है, तो हम अगले 3 महीने का अनुमान सही से लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 साल की मॉनिटरिंग हो चुकी है, तो हम अगले 2 साल तक का भी प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन 2 साल में हम कुछ सेकेंडों का भी प्रेडिक्शन बता सकते हैं, मिनटों का भी प्रेडिक्शन बता सकते हैं, आवर्स का भी प्रेडिक्शन बता सकते हैं, डेज का भी और ईयर्स का भी। तो हमारे पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतना हमारे प्रेडिक्शन की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। और सर ये जो साउंड पोल्यूशन है हमारा, मतलब जो भी क्रैक्स डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर्स में, किस प्रकार अफेक्टेड होते हैं साउंड पोल्यूशन से? किसकी वजह से कह रहे हैं आप? साउंड पोल्यूशन सर, साउंड से। जो उस टेम्पल में आप बताएं कि जो कुछ भी है चैरियट से, यहाँ पे साउंड पोल्यूशन है, साउंड की वजह से हरि कीर्तन होता है जिस वजह से वहाँ पे क्रैक्स डेवलप आ गए। हाँ, साउंड की वजह से क्रैक्स नहीं आए थे।
फ्लोर वाइब्रेशन की वजह से आए थे। जो ह्यूमन मूवमेंट है, ह्यूमन मूवमेंट की वजह से फ्लोर वाइब्रेशंस आए थे और उन फ्लोर वाइब्रेशंस की वजह से वो क्रैक्स बढ़े मार्बल में ही। अच्छा, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, वो स्ट्रक्चर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से मैच नहीं करती, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो वाइब्रेशन जो आप बात कर रहे हैं साउंड के द्वारा, वो उस फ्रीक्वेंसी में हमारा स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इसलिए साउंड के द्वारा स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत रिमोट है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ओके, दिवाकर सर। ओके, आई थिंक कि दिवाकर सर नहीं है, उनका नेट इशू था थोड़ा। तो किसी भी स्टूडेंट को और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, इसी के साथ हम मैं लोग अपना ईमेल एड्रेस यहाँ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर कोई डाउट है या फर्दर आपको कोई एडवाइस लेनी है, आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे क्वेश्चंस अपने सेंड कर सकते हैं। ये मैंने चार्ट में डाल दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है, तो वो डायरेक्टली सर से मेल पे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में सर ने अपना जो है ईमेल एड्रेस दे रखा है। I believe there are no further questions. Yes, sir, सभी there से are no जानना further चाहूंगा, questions. FAQs तो ओपन ही थे, तो Yeah. गिव अ राउंड ऑफ applause to every one of you. अपने यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए जो है एक राउंड ऑफ अप्लॉज दे सकते हैं, प्लस एज वेल एज टू प्रदीप कुलश्रेष्ठ आल्सो। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Pradip, for clarifying most of the doubts. And it's a remarkable benchmark that you have achieved. A big congratulations to you. Thank you, Arjit ji. Thank you. My big congratulations to you. Hope you do fairly well in this industry. और हम सभी का सपोर्ट आपके साथ है। फुल स्क्रीन कैसे आई? Thank you so much. Thank you so much. बोली तो ओकरा हिसाब से आई, वो हिसाब से नहीं। आपके जैसे लोग रहेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। जो कंट्रोल करता ना वेबिनार में सब चार्ज ये अपने पास ले लेना, अभी सबके म्यूट रख ले हुए। थैंक्स सर। फोन को हटा। I believe we can end this session now. बोलिए म्यूट हटाइए, ये म्यूट के बटन दो। All right. Thank you so much, Mr. Ashish. Thank you so much. तो अपन वाला म्यूट हटाइए। Thank you so much, sir, for giving us time. Thank you so much for Dr. giving us sir. the valuable time, sir. फोटो ना उसी निशान था तो फोटो ना भेज नहीं तो कैसे फोटो आ गई बा। Thank you. उसी से उठा ले। Okay, thank you so much. Thank you, sir. Hello, students.